Hello everyone, this is Shailesh, and today I'm going to talk about something significantly constructive. After this video, you'll understand whether you will clear UPSC Prelims 2021 or not. In short, whether you are ready for it or you are not ready for it. I don't have any intention to dishearten you, but I will try to explain the realities related to this examination. And everything that I'm gonna say is based on my personal experience of years and on the experience of my fellow colleagues of passing as well as failing in entire UPSC process. UPSC CSE recruitment process has three distinct stages. First one is preliminary, then you have main examination, and then you have interview. Guys, believe it or not, at every stage you would need considerable luck. I'm not saying that your efforts do not matter. What I'm trying to say is that at every stage a lot of things have to go right, must go right, then only you'll make it to this merit list. और इस merit list में भी एक desired place पे आपका नाम आना ज़रूरी है. Then only you will get what you actually strive for और what you actually want. इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको भाग्यवादी विचारधारा की तरफ प्रोत्साहित करूं, because luck will play the secondary role. प्राइमरी रोल जो होगा वो आपके एफर्ट्स का होगा, और आपका लक आपका साथ दे या ना दे, that is a different matter. But the first thing that you need to do is that you have to give your 100%. And today I'm gonna tell you what your 100% should look like. उसके बाद success मिले ना मिले, that is a different thing. But this is what 100% looks like, and it is an absolute necessity to clear this examination. At least preliminary examination and main examination. And I'm not going to paint any rosy picture about the examination, and now I'll come straight to the point. Guys, UPSC Prelims 2021 के लिए ये कुछ essential requirements हैं. अगर ये prerequisites आप meet नहीं कर रहे हैं, then there is a very slim chance that you will clear UPSC 2021. And also I'm talking about the majority of people, common people like you and me. I'm not talking about extraordinary candidates like the robot चिट्टी जो 10 घंटे का काम 10 मिनट में कर सकते हैं. उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके और मेरे जैसे आम लोगों को ये रिक्वायरमेंट्स असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को क्वालिफाई करना है, कंसिडरिंग the extremely diversified nature of examination. First, you need a well-defined undiluted study strategy. इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि आपको 10 sources रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. You just need 1 or 2 good sources and try to cover as much as possible from these limited sources. I will give you a very simple example. I'm not going to share the book list with you, because if you don't know the book list by now, then it is already too late. The ship has already sailed. But I'm just giving you an example. Suppose you are studying history, then I would recommend that you go for Poonam Dalal Dhaiya for ancient and medieval portion. And the second book that I would suggest is either go for Spectrum or go for सोनाली बंसल. अब आपने इनमें से कौन सी बुक पढ़ी है, आई हैव नो आइडिया. आपने दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ी, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, बिकॉज अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है देन अब फिलहाल जो टैक्टिक है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन 2021 अटैम्प्ट. लेकिन अगर आपने ये दोनों बुक्स पढ़ी हैं तो इन दोनों बुक्स के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न. सपोज कीजिए अगर हिस्ट्री में 15 क्वेश्चंस आते हैं इंक्लूडिंग एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया. इन 15 क्वेश्चंस में से देयर मस्ट बी
एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस जो आप कोई भी बुक पढ़ लें, आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. दे विल बी डायरेक्ट, दे विल बी कैमोफ्लॉज्ड, एंड ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है. और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 15 में से आप अगर 10 का टारगेट लेते हैं, वो 10 क्वेश्चंस आपको इन 2 सोर्सेस से बहुत आसानी से मिल जाएंगे. सो ट्राइंग टू नो एवरीथिंग फ्रॉम एवरी पॉसिबल सोर्स इज़ द बिगेस्ट ट्रैप दैट पीपल फॉल इन, एंड जिसकी वजह से उनका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होता है. गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम is the test of your smartness, is the test of your organizational skills, and not actually the test of comprehensive knowledge that you can acquire. And it is quite visible from the fact कि जो कट ऑफ है वो 200 में से आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 साल से, 4 साल से बल्कि 100 के ऊपर नहीं जा रही है. तो अगर आप 50% क्वेश्चंस भी ठीक अटेम्प्ट करके आते हैं, या लेट्स से आपने 60 to 65 क्वेश्चंस सही मार्क किए, 20 क्वेश्चंस लेट्स से आपने इनकरेक्ट मार्क किए, और 15 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, अटेम्प्ट नहीं किए, देन दिस इज़ द आइडियल स्कीम. वाई? बिकॉज 15 क्वेश्चंस तो हर बार ऐसे होंगे ही होंगे. इवन इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड person, let's say you are preparing for 3 years or 4 years, then also you will find at least 10 to 15 अतरंगी questions जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा या आप कभी ज़िंदगी में श्योर नहीं हो सकते हैं. 20 questions में एक error margin रहेगा ही रहेगा, but try to be sure of at least 50 to 60 questions. अगर आपका इतना certain है, then you can make it to the main examination. एक चीज़ और आपको यहाँ नोटिस करनी है, जो एग्जामिनेशन का स्टैटिक और डायनामिक पार्ट है उसको लेकर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा. कहाँ फंसते हैं? आई विल टॉक अबाउट इट इन द स्ट्रेटजी सेक्शन शॉर्टली. सो द सेकेंड असेंशियल रिक्वायरमेंट इज़ कंसिस्टेंसी, एंड बाय कंसिस्टेंसी आई मीन कि जिस स्टूडेंट ने सीरियसली कम से कम लास्ट 6 months से पढ़ाई की है, और यहाँ पे पढ़ाई को एवेल्यूएट करने का एक ही तरीका है कि उसने बिना किसी बहाने के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के, एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 10 hours पर डे सिंसियर डेडिकेटेड स्टडी की है, देन दिस स्टूडेंट इज़ डेफिनेटली अ सीरियस कंटेंडर फॉर दिस एग्जामिनेशन. हालांकि जो आइडियल टाइम है प्रेपरेशन का, दैट इज़ 10 months, और अगर किसी ने उससे ज़्यादा टाइम दिया है देन ऑब्वियसली those people will have certain added advantages. Okay, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका अभी तक अगर रिवाइज नहीं हुआ है या आपने नहीं पढ़ा है प्रॉपरली, छोटी सी विंडो है आपके पास, स्मॉल विंडो है आपके पास, कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को 26 April 2021, जो कि एग्जामिनेशन से एग्जैक्टली 2 महीने पहले है, आप तब तक अगर अपना ऑप्शनल फिनिश कर लेते हैं बाय डिवोटिंग जस्ट 2 to 3 hours पर डे, then that would be a great thing to do, because once you are done with your preliminary exam, you will have hardly 3 months time in your hand, and believe me, it is not enough to deal with GS papers, to deal with essay, to deal with language papers, and to deal with your optional exam. The time will fly like anything. You will not have enough time to even revise 50% of the कंटेंट. बट मेंस का मुद्दा ही तब आएगा जब आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे. ठीक है, तो अगले जो 100 दिन हैं, इन 100 days में इफ़ यू आर एबल टू गिव अनडिवाइडेड अटेंशन टू यूपीएससी, देन यू स्टैंड अ गुड चांस. सो पहला क्राइटेरिया, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो डिफाइंड रही हो, अनडाइल्यूटेड रही हो. दूसरा, आपकी कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करके रखी हुई है पिछले 6 महीने से कम, उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड. अगर ऑप्शनल कवर नहीं हुआ है तो आप उसे 26 अप्रैल तक कवर कर लें. अगले 100 दिन आपके अनडिवाइडेड अटेंशन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए होनी चाहिए, और मिनिमम स्टडी टाइम, इवन इफ़ यू आर अ बॉर्न चैम्पियन, देन ऑल्सो आई वुड रेकमेंड कि कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई आप कम से कम करें, एंड इफ़ यू कैन टेक इट अप टू 13 to 14 hours, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग. बिकॉज ये जो पढ़ाई है आपकी, ये आपका सिर्फ प्रीलिम्स में हेल्प नहीं करेगी, दिस विल हेल्प यू रिड्यूस योर एंटायर वर्कलोड ड्यूरिंग योर मेन प्रेपरेशन.
और ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन इन मेन एग्जामिनेशन एवरी मार्क विल मेक अ डिफरेंस। तो आज अगले 3 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। यू विल हैव टू रिनाउंस ऑल योर कंफर्ट्स, यू मस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते हैं, देन इट इज़ अ वेरी टफ नट टू क्रैक। फाइनली अगर आपने ये 4 चीज़ें आप करने के लिए रेडी हैं और आपने ये चारों चीज़ें की हैं, देन यू मस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ। इसके बाद फिर आपको लो कॉन्फिडेंस रखना, लो मोराल रखना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट दैट यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन। बट अगर इन चारों में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग है, देन देर इज़ अ बिग डाउट। ओके, जनरल एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगा कि एवरी वीकेंड आप कम से कम 2 क्वेश्चंस जीएस पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 से प्रैक्टिस करें। उनका प्रॉपर एवेल्युएशन होना चाहिए। जीएस पेपर 4 एंड ऐसे राइटिंग से आप ब्रेक ले सकते हैं अगले 3 महीने के दौरान, बिकॉज इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस एट दिस स्टेज। नाउ आई कम टू द स्ट्रेटजी पार्ट। फर्स्ट थिंग, you need to develop a clear understanding of the importance of static and dynamic factors in UPSC Prelims। सरल भाषा में कहूँ तो कि UPSC में जो डायनामिक फैक्टर्स हैं या डायनामिक क्वेश्चंस हैं, उनका वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 40% है ऑन एन एवरेज ऑन द एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 to 12 years of question papers। स्टैटिक पोर्शन इनवेरिएबली 60% पे स्टक है। ये जो 60% स्टैटिक पोर्शन है, इसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कम टाइम देते हैं। जो 40% पोर्शन है जो कि डायनामिक नेचर है जिसका, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, मान लीजिए आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं और आपकी जो जनरल साइंस है, आप उस पर उतना फोकस ना करके आप सारा फोकस किस पे रखते हैं, आप साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स जो डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंटली, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं मार्केट में, आप उनके ऊपर आपका एंटायर फोकस है। गाइज, आई कैन टेल यू वन थिंग हेयर दैट यूपीएससी का जो डायनामिक फैक्टर है, ये इतना डाइवर्सिफाइड है कि इवन इफ़ यू कवर दिस सेक्शन फ्रॉम 10 डिफरेंट सोर्सेज, देन ऑल्सो आप इसमें से सपोज कीजिए 40 क्वेश्चंस अगर आते हैं ऑन एन एवरेज, यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है, उस स्टैटिक पोर्शन में जो 60% क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसको थॉरोली प्रिपेयर करते हैं, देन ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपको लगभग 10 to 15% क्वेश्चंस अतरंगी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी होप है कि 45 to 50 क्वेश्चंस आप बहुत सॉलिड तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो द ट्रैप इज दैट स्टूडेंट्स एंड अप स्टडीइंग करंट अफेयर्स फॉर लास्ट 2 years, 3 years। They give so much time in current affairs, they give too much time reading Hindu that they forget about the static portion। Remember, जो static portion है वो आपका यहाँ पर फाउंडेशन है। ये जो फैक्टर है 40% फैक्टर, इसे आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो 60% फैक्टर है, यहाँ पर आप डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। सो प्लीज़, आपने अभी तक जो भी कुछ किया है डजेंट मैटर, आपका जो स्टैटिक का पोर्शन है वो रॉक सॉलिड होना चाहिए, वो थॉरोली कवर्ड होना चाहिए। रिमेंबर, डू नॉट रेफर टू मैनी सोर्सेज, जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, बिकॉज यूपीएससी का कोई पैटर्न नहीं है and UPSC is expert in back-breaking moves। Second point है, do not change sources of study as of now। अब अगले 3 महीने के लिए आपको ना तो बुक लिस्ट बदलने की ज़रूरत है, ना ही वेबसाइट्स, ना ही मैगजीन्स। अगर आप विजन IAS फॉलो कर रहे हैं, इनसाइट्स फॉलो कर रहे हैं, दृष्टि फॉलो कर रहे हैं, just keep doing what you are doing। Do not change the tactics at the very last moment, and this is the last moment, because ये जो moments हैं, ये जो अगले 3 महीने हैं, this is not for gathering knowledge, this is for the consolidation of knowledge that you have already gathered in past 6 months or so। The next point that I have to share is, you might find it odd or weird, but I will not recommend you to go through last 5 years question papers, because
पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स में यूपीएससी ने हर उस पैटर्न को ब्रेक किया है जो एक्सपर्ट्स इमेजिन कर सकते थे। 2005 से लेकर 15 के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट्स रिपीट करती है। एंड इफ़ यू डोंट बिलीव मी यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ कि 2019, 2020, 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को यूपीएससी ने 2006, 2007, 2009, 2011 के पेपर्स में पूछा था, उन कॉन्टेक्स्ट को वहाँ पर रेज किया था। सो यूपीएससी पिछले 4 से 5 साल और 6 साल के क्वेश्चंस या उनके कॉन्टेक्स्ट को रिपीट नहीं करेगी, बट डेफिनेटली जो स्टैटिक पोर्शन है, स्पेसिफिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स सेक्शन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक पोर्शन, 60% वेटेज जिसका है, उसके लिए आई वुड रेकमेंड कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट स्टार्ट with year 2005 question papers and then finish up to 2050। करंट अफेयर्स आपको कब से कब तक के कवर करने हैं? कुछ लोग कहेंगे 2 साल के कर लो, 3 साल के कर लो। आई विल से दैट डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी ऑन स्टडिंग करंट अफेयर्स फॉर लास्ट 2 years और 3 years, क्योंकि अगर उसमें से एक क्वेश्चन आ भी गया देन इट इज़ नॉट वर्थ द बेनिफिट। जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसमें उसका वेटेज बहुत नीचे जाएगा। डू नॉट डू दैट, इंस्टेड फोकस ऑन कंसोलिडेशन ऑफ योर नॉलेज। सो अकॉर्डिंग टू मी मई 2020 से लेकर 10th मई 2021 तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके रेडी होने चाहिए। अगर आप एक एविड और एक्टिव हिंदू रीडर रहे हैं और रिटेनर रहे हैं देन दिस सेक्शन शुड नॉट गिव यू टू मच ट्रबल। आपने प्रॉपर नोट मेकिंग वगैरह की है, बट अगर आपने नहीं की है देन यू स्टिल हैव ऑप्शंस। आई वुड रेकमेंड कि आप 2 साइट्स, मिनिमम 2 साइट्स, आई एम नॉट रेकमेंडिंग कि आप सिर्फ दृष्टि या इनसाइट्स ही फॉलो करें। आई एम जस्ट सेइंग कि रीड करंट अफेयर्स फ्रॉम एटलीस्ट 2 सोर्सेज। 2 सोर्सेज का होना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको एक वाइडर कवरेज मिल जाएगा। जनरल रिकमेंडेशन, इनसाइट्स टू द पॉइंट चीज़ें देता है, दृष्टि एक्सप्लेन करके बैकग्राउंड जो है उसको भी देता है, बट दृष्टि को आपको क्या करने की ज़रूरत है, बहुत सेलेक्टिवली पढ़ने की ज़रूरत है। जो वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज वो दे रहे हैं उसमें आपको डूबने की फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है। सो रीड करंट अफेयर्स फ्रॉम 2 सोर्सेज एंड जस्ट सॉलिडिफाई योर नॉलेज ऑफ पास्ट 10 months करंट इवेंट्स। इससे ज़्यादा कि आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे अलग अगर क्वेश्चन आया तो फिर आप कहीं से भी पढ़ लेना, उसका आंसर आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है, गाइज टेस्ट सीरीज़ आई वुड अगेन रेकमेंड टेक इट फ्रॉम 2 सोर्सेज मिनिमम, जो आपको पसंद हो, जिसका आपको कंटेंट अच्छा लगता हो। आप विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, आप इनसाइट्स की ले लीजिए, आप दृष्टि की ले लीजिए, वाजीराम एंड रवि की ले लीजिए, जिसका आपको पसंद आए आप वो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक फैक्टर यहाँ पे और है, अफोर्डेबिलिटी फैक्टर। ऑब्वियस सी बात है सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जो उनके प्रीवियस टेस्ट्स हैं, और आपको ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड 10 सेक्शनल टेस्ट फ्रॉम लेट्स से 1 सोर्स, another 10 sectional test from another source। तो यहाँ पे आपको 10 सेक्शन, जो 10 सेट्स आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे स्टैटिक के लिए, एंड ये मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे देन यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई वुड रेकमेंड कि आप अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट करें, रिकंसोलिडेट करें, रिविजन पे ध्यान दें, क्योंकि अगले 3 महीने आपके रिविजन के हैं। उसके बाद आपको कम से कम 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ देनी है, और इसमें भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 2 सोर्सेज से टेस्ट सीरीज़ लें, 3 फ्रॉम 1 सोर्स एंड 3 फ्रॉम अनदर सोर्स। करंट अफेयर्स के टेस्ट के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पे जाएं। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के
आप डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। बाजीराम एक ऑप्शन आपको ऑफ़र करता है, विजन आपको ऑफ़र करता है, दृष्टि आपको ऑफ़र करती है। इन वेबसाइट्स पे जाकर आप कम से कम डेली 10 MCQs करंट अफेयर्स से रिलेटेड सॉल्व करें। स्टैटिक को आपको यहाँ हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास करंट ईयर की टेस्ट सीरीज़ का स्टैटिक पोर्शन के लिए एक्सेस नहीं है तो आप 2020 में जो टेस्ट सीरीज़ ली थी लोगों ने, जो प्रोवाइड की है, मार्केट में अवेलेबल है, 400-500 रुपये में आपको मिल जाएगी, घर पे डिलीवर हो जाएगी आपके, आप वो ले सकते हैं। बिकॉज जो स्टैटिक सेक्शन है इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। इसके बाद आपका जो मेन काम है वो है कि आपको टेस्ट सीरीज़ को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में देना है। जब हम लोग घर पे टेस्ट सीरीज़ दे रहे होते हैं सो वी हैव दीज टेंडेंसीज़ कि हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं उतना, लेकिन आपको प्रॉपर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, आपको उस तरीके से इमेजिन करके, प्रॉपर फ़ोन साइड में रख के, सारी चीज़ें अलग हटा के, आपको 2 घंटे का स्पेसिफिक टाइम लेकर ये टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करनी है। और टेस्ट सीरीज़ के अटैम्प्ट के बाद जो मेन चीज़ होती है वो है उसकी एनालिसिस। आपको हर क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपने गलत किया तो क्यों किया, सही किया तो क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चंस में भी डायरेक्टली सेम ना हो एग्जामिनेशन में, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहता है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और लास्ट के जो 10 डेज़ होंगे, उन लास्ट 10 डेज़ में आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि लास्ट के 10 डेज़ आपके रिवीजन के 10 डेज़ होते हैं और उसमें आपका करंट और स्टैटिक का रिवीजन होना चाहिए टू द पॉइंट। गाइज़, आपके करंट अफेयर्स के नोट्स पिछले 10 महीने के इस तरह रेडी होने चाहिए कि आप उन्हें 24 आवर्स में रिवाइज कर सकते हैं। आपका स्टैटिक पोर्शन इतना कंसाइज होना चाहिए कि आप उसे विद इन 1 वीक हर सब्जेक्ट का स्टैटिक पोर्शन आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को करने में सक्षमता दिखाई, देन प्रीलिम्स विल नॉट पोज any threat to you guys. Just remember, do not diversify your sources too much and at least incorporate current affairs and static material from 2 different sources. Test series आपको कब देनी है? That is a pretty relevant thing to be addressed here. I think आपके पास अभी लगभग 100 days का टाइम है, and अगर आप every alternate day पर, लेट्स से आप एवरी 3rd डे पर एक फुल टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करते हैं, चाहे वो सेक्शनल हो या फिर वो आपकी कंपोजिट टेस्ट सीरीज़ हो, देन इट शुड बी मोर देन इनफ। एवरी 3rd डे शुड बी रिजर्व्ड फॉर अटैम्प्टिंग टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करने में आपको 2 घंटे लगेंगे, लेकिन उसके एनालिसिस में कम से कम आपको 4 से 6 घंटे लगेंगे टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट प्रॉपरली। आपको सिर्फ आंसर्स देखना नहीं है, आंसर्स रटने नहीं है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है। तो ये 4 से 6 घंटे अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन दिस वुड बी वे मोर फ्रूटफुल देन रीडिंग बुक्स continuously for hours and hours and hours. So in short, हर तीसरे दिन आप कम से कम 8 hours टेस्ट सीरीज़ को डिवोट करेंगे। आप करंट अफेयर्स के सोर्सेस 2 जगह से लेंगे, आप टेस्ट सीरीज भी 2 जगह से लेंगे। अफोर्डेबल ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, आपको बस उन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द टाइम वेयर द हार्ड वर्क and smart work will really make a difference. Do not give yourself excuses for not studying. Minimum 10 hours and better if you can take it up to 12 or 13 hours per day. इतना अगर आपने कर लिया अगले 3 महीने में, then you can be really hopeful for writing your main examination. Guys, if you have any particular questions related to your own strategy that you want me to address, you can ask me in the comment box and I will revert as soon as possible. Thank you so much.